নমস্কাৰ দুপৰ সংবাদ ষ্টুডিঅ'ত পৰস্মিতা ৰঙালীৰ আনন্দ উৎসাহৰ মাজতে মাজুলীৰ অঘটন নাৱৰ পৰা ব্ৰহ্মপুত্ৰত জাপ দিলে এজন লোকে কমলাবাৰী পাৰ ঘাটৰ পৰা নিমাতী ঘাট অভিমুখী যাত্ৰীবাহী নাৱত এই ঘটনা এছপি প্ৰতি নামৰ নাওখনৰ পৰা জপিয়ালে যুৱকজনে ঘটনাস্থলীত এছডিআৰএফ বাহিনীৰ উদ্ধাৰ অভিযান আৰম্ভ পুনৰ জনাও যে ৰঙালীৰ আনন্দৰ মাজতে মাজুলীত সংঘটিত হৈছে এটা কৰুণ ঘটনা নাৱৰ পৰা ব্ৰহ্মপুত্ৰত জাপ দিলে এজন লোকে কমলাবাৰী পাৰ ঘাটৰ পৰা নিমাতী ঘাট অভিমুখী যাত্ৰীবাহী নাৱত এই ঘটনাটি সংঘটিত হ'ল এছবি প্ৰতি নামৰ এখন নাৱৰ পৰা জপিয়াই দিলে এই যুৱকজনে ঘটনাস্থলীত এছডিআৰএফ বাহিনীৰ উদ্ধাৰ অভিযান আৰম্ভ হৈছে আমি অলপ আগতে খবৰ পালোঁ কমলাবাৰী ঘাটৰ কৰ্তৃপক্ষৰ পৰা খবৰ পালোঁ যে 10টা বজাত যোৱা এখন ফেৰী নিমাতী ঘাটলৈ গৈ থকা ফেৰীৰ পৰা এজন যুৱকে নদীৰ মাছমজিয়াত জপিয়াই দিছে বুলি কিন্তু ল'ৰাজন এতিয়া কোন নিশ্চিতভাৱে জানিব পৰা হোৱা নাই অলপ পিছত গম পোৱা যাব এছডিআৰএফ পাৰ্টি গৈছে উদ্ধাৰ অভিযান চলাই আছে আজিৰ পৰা 3 দিনীয়াকৈ সংসদৰ বিশেষ অধিৱেশন সংসদত নাৰী শক্তি বন্ধন অধিনিয়মৰ ওপৰত চলিব বিশেষ আলোচনা 2023 চনত গৃহীত হৈছিল নাৰী শক্তি বন্ধন অধিনিয়ম মহিলা সংৰক্ষণ বিধেয়ক কাৰ্যকৰী কৰাৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় সাংবিধানিক সংশোধনী অনাৰ উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত হৈছে বিশেষ অধিৱেশন 3 দিনীয়া বিশেষ অধিৱেশনত উত্থাপন হ'ব 3খনকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ বিধেয়ক সংবিধান 131 সংখ্যক সংশোধন বিধেয়ক সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ সংশোধনী বিধেয়ক কেন্দ্ৰীয় শাসিত আইন সংশোধনী বিধেয়ক উত্থাপন হ'ব সদনত লোকসভাৰ আসনৰ সংখ্যা বৃদ্ধিৰ প্ৰস্তাৱ শাসকীয় পক্ষই উত্থাপন কৰিব সদনত লোকসভাৰ আসনৰ সংখ্যা 543 পৰা 850খন কৰাৰ প্ৰস্তাৱ সদনত উত্থাপন কৰিব শাসকীয় পক্ষই ইয়াৰে 273খন আসন মহিলাৰ বাবে সংৰক্ষিত হ'ব মহিলাৰ বাবে আসন সংৰক্ষণৰ সৈতে সম্পৰ্ক আছে লোকসভাৰ আসন বৃদ্ধিৰ প্ৰস্তাৱৰ 2029 ৰ সাধাৰণ নিৰ্বাচনত মহিলাৰ বাবে 33% আসন সংৰক্ষণৰ লক্ষ্য কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ বিধেয়কখন আইনলৈ ৰূপান্তৰ হ'লেই লোকসভাত ৰাজ্যবোৰৰ আসনৰ সংখ্যা 815খন আৰু কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলৰ আসনৰ সংখ্যা 35খনলৈ বৃদ্ধি হ'ব সংসদৰ বিশেষ অধিৱেশনৰ পূৰ্বে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ বিশেষ পোষ্ট উষা স্তুতিৰে নাৰী শক্তি বন্ধন অধিনিয়মৰ প্ৰসংগ নাৰী সবলীকৰণৰ ক্ষেত্ৰত দেশে ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিব ৰাজ্যসভাত অসমৰ 3গৰাকী নৱনিৰ্বাচিত সাংসদৰ শপত গ্ৰহণ সদনৰ মজিয়াত অসমৰ 3গৰাকী নৱনিৰ্বাচিত সাংসদৰ শপত বাক্য পাঠ কৰালে ৰাজ্যসভাৰ অধ্যক্ষই ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ হিচাপে শপত ল'লে যোগেন মোহন প্ৰমোদ বড়ো আৰু তেৰছ গোৱালাই পৰম্পৰাগত আহোম সাজপাৰ পিন্ধি শপত ল'লে যোগেন মোহনে প্ৰমোদ বড়ো আৰু তেৰছ গোৱালাইও পৰম্পৰাগত সাজপাৰ পৰিধান কৰি পাঠ কৰিলে শপত বাক্য সাংসদ হিচাপে শপত বাক্য ল'বলৈ সদনলৈ চাইকেল চলাই আহিল তেৰছ গোৱালাই মই শ্ৰী তেৰছ গোৱালা ৰাজ্যসভাৰ সদস্য নিৰ্বাচিত হোৱাত ঈশ্বৰৰ নামত শপত কওঁ যে বিধিৰ দ্বাৰা স্থাপনা কৰা ভাৰতৰ সংবিধানৰ প্ৰতি মই প্ৰকৃত বিশ্বাস আৰু নিষ্ঠা পোষণ কৰিম মই ভাৰতৰ প্ৰভুত্ব আৰু অখণ্ডতা অক্ষুণ্ণ ৰাখিম আৰু মই গ্ৰহণ কৰিব ধৰা কৰ্তব্য শ্ৰদ্ধাপূৰ্বক নিৰ্বাহন কৰিম যোগেন মোহন ৰাজ্যসভাৰ সদস্য নিৰ্বাচিত হোৱাত ফুৰা তাৰাৰ নামত শপত কওঁ যে বিধিৰ দ্বাৰা স্থাপনা কৰা ভাৰতৰ সংবিধানৰ প্ৰতি মই প্ৰকৃত বিশ্বাস আৰু নিষ্ঠা অক্ষুণ্ণ ৰাখিম মই ভাৰতৰ প্ৰভুত্ব আৰু অখণ্ডতা অক্ষুণ্ণ ৰাখিম আৰু মই গ্ৰহণ কৰিব ধৰা কৰ্তব্য শ্ৰদ্ধাপূৰ্বক নিৰ্বাহন কৰিম
आं प्रमोद बर' हादोर गौथुमनि बिसायख'जानाय सासे सोद्रोमा इसोरनि मुङै समायखिरा लायोदि आंहा आयेन खान्थिजों सुजुजानाय भारत संबिजितनि फारसे फोथायनाय थागोन आरो भारतनि सार्वभौमत्व आरो गोरोबथिखौ रैखा खालामगोन। अदेबानि आंनो मावनो होनाय बिबानफोरखौ सैथोजों मावफुंगोन। বিহুৰ আনন্দৰ মাজতে গুৱাহাটীৰ লাচিত নগৰত ভয়ংকৰ ঘটনা। চুৰ ধৰিবলৈ গৈ গুৰুতৰভাৱে আহত হ'ল যুৱক। ৰোহিত দাস নামৰ এজন যুৱকক চুৰিৰে উপৰ্যুপৰি আক্ৰমণ কৰিলে চোৰে। পেট আৰু হাতত গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হ'ল যুৱকজন। প্ৰথমে নামঘৰীয়ে আক্ৰমণ কৰিছিল চোৰটোৱে। চোৰটোক বাধা দিবলৈ যাওঁতে ৰোহিতক চুৰিৰে আক্ৰমণ কৰে। পুৱাই লাচিত নগৰৰ ৰাজহুৱা নামঘৰত গ্ৰিল চুৰি কৰিবলৈ আহিছিল চোৰে। সংকটজনক অৱস্থাত নেম কেয়াৰ হাস্পতালত চিকিৎসাধীন হৈ আছে যুৱকজন। ঘটনাৰ পাছতে চোৰটোক কৰায়ত্ব কৰি পল্টন বজাৰ আৰক্ষীক গতাই দিয়ে ৰাইজে। মাথাৰ ওপৰত উঠাই লৈ পেলাই মানে গৈ আছে, ময়ো পিছে পিছে দৌৰি আছোঁ। দৌৰি গৌৰি চব সম্বাদৰ মানুহবিলাক এইখিনি গলিৰ ভিতৰৰ মানুহবিলাকক চবকে উঠালোঁ। উঠাই পেলাই চববিলাকে দৌৰি গ'লে, ল'ৰাবিলাকো দৌৰিলে। দৌৰি গৈ পেলাই হেমগিৰি পথত তালৈ গ'ল। গৈ পেলাই গিৰিলখন তাত পেলাই থৈ মানে সি ঘূৰি আহিলে। ঘূৰি আহি পেলাই চব ল'ৰাবিলাকে ধৰিলে তাক। ধৰি পেলাই আমাৰ এই ভতিজা ল'ৰা এজন আছিলে, তাক চাকৰি সানি দিলে। আজি 2 বহাগ আৰু ৰঙালী বিহুৰ তৃতীয়টো দিন, অৰ্থাৎ গোসাই বিহু। গোসাই বিহু উপলক্ষে পুৱাই ৰাজ্যৰ সত্ৰ নামঘৰ মন্দিৰত নেদেখাজনৰ ওচৰত সেৱা লৈছে ৰাজ্যবাসীয়ে। হৰি নামৰ ধ্বনিত মুখৰিত হৈ পৰিছে ৰাজ্যৰ সত্ৰ নামঘৰ। বৰপেটা, বটদ্ৰৱা, আঠখেলীয়া, ঢেকীয়াখোৱা, মধুপুৰ আৰু মাজুলীৰ সত্ৰসমূহৰ লগতে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ ৰাজহুৱা নামঘৰসমূহত দিনজোৰা কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত হৈছে নাম প্ৰসংগ। সমান্তৰালকৈ ৰঙালী বিহু উপলক্ষে প্ৰান্তে প্ৰান্তে অনুষ্ঠিত হৈছে বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচী। ঢোল পেঁপাৰ মাতত ৰজন জনাই উঠিছে ৰাজ্যৰ আকাশ বতাহ। গোসাই বিহু উপলক্ষে গুপ্তকাশী বিশ্বনাথ ঘাটত অনুষ্ঠিত হয় গোসাই ফুৰোৱা উৎসৱ। বিশ্বনাথ দেৱালয়ৰ পৰা 5 কিলোমিটাৰ খোজকাঢ়ি গোসাই কান্ধত উঠাই ভিৰ গাঁৱলৈ নি কাইঢপত দিনটোৰ বাবে প্ৰতিষ্ঠা কৰা হয়। তাৰ পিছতে পুনৰ বিয়লি গোসাইক দেৱালয়লৈ উভতাই অনা হয়। আহোম যুগৰে পৰা চলি আহিছে এই পৰম্পৰা। ঐতিহাসিক গুপ্তকাশী বিশ্বনাথ ঘাটৰ প্ৰায় 27খনকৈ দেৱালয়ৰ ভিতৰত অন্যতম প্ৰধান বিশ্বনাথ দেৱালয়ত গোসাই বিহুৰ দিনাখন বিভিন্ন প্ৰান্তৰ অগণন ভক্তৰ সমাগম দেখা গৈছে। গোসাইৰ যাত্ৰা পথত ৰাইজে সেৱা জনাই বছৰটোৰ বাবে কুশল মংগলৰ বাবে আশীৰ্বাদ। হয়, আজি গোসাই বিহু আৰু গোসাই বিহুৰ দিনটোত দেখিবলৈ পোৱা যায় যে বিশ্বনাথত গোসাই ফুৰোৱা উৎসৱ আয়োজন কৰা হয়। আৰু এই মুহূৰ্তত মই উপস্থিত আছোঁ বিশ্বনাথ দেৱালয়ত। আৰু এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে গোসাইক ইতিমধ্যে দেৱালয়ৰ পৰা ইতিমধ্যে উলিয়াই লৈ অহা হৈছে আৰু দিনটোৰ বাবে গোসাইক প্ৰতিষ্ঠা কৰা হ'ব ভিৰ গাঁৱৰ কাইঢপত। আৰু খোজকাঢ়ি গোসাইক ইয়াৰ পৰা লৈ যোৱা হ'ব আৰু বিয়লিৰ ভাগত পুনৰ গোসাইক আচলতে বিশ্বনাথ দেৱালয়লৈ লৈ অহা হ'ব। আৰু আহোম ৰজা গদাধৰ সিংহৰ দিনৰে পৰা এই পৰম্পৰা চলি আহিছে। আৰু এই মুহূৰ্তত আমি দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ বিশ্বনাথ ঘাটৰ। আৰু এই মুহূৰ্তত আমাৰ লগত উপস্থিত আছে বিশ্বনাথৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী তথা বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সাধাৰণ সম্পাদক পল্লৱ লোচন দাস। আচলতে গদাধৰ সিংহৰ দিনৰে এক পৰম্পৰা 1684 চনৰ, আৰু সেই পৰম্পৰা বিশ্বনাথৰ ৰাইজে এতিয়াও পালন কৰি আহিছে আৰু লোকে লোকাৰণ্য হৈ পৰে আজিৰ দিনটো। কি জনাব? চাওক, আমি বিশ্বনাথবাসী নিশ্চিতভাৱে সৌভাগ্যৱান, কাৰণ আমি এই পৰম্পৰাৰ অংশীদাৰী হ'ব পাৰিছোঁ। কাৰণ এই পৰম্পৰাই বিশ্বনাথ ঘাটৰ পৰিচয়, বিশ্বনাথৰ পৰিচয়। আমি বিশ্বনাথ বাবাক লৈ আমাৰ এই বিশ্বনাথ সমগ্ৰ বিশ্বনাথবাসী ৰাইজে আজি সদায় গৌৰৱ কৰি আহিছে। আমাৰ মূল অনুষ্ঠানসমূহৰ ভিতৰত এটা সকলোতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু মাংগলিক অনুষ্ঠান আজিৰ এই অনুষ্ঠান গোসাই বিহু। গোসাই বিহুৰ দিনটো অতি পবিত্ৰ মাংগলিক অনুষ্ঠান। আজি গদাধৰ সিংহৰ দিনৰ পৰা আজি 441 বছৰ এই ঐতিহাসিক পৰম্পৰা বৰ্তমানো নতুন প্ৰজন্মই এই আদৰি লৈ আছে। ই আমাৰ বাবে অতি আনন্দপূৰ্ণ আৰু গৌৰৱপূৰ্ণ মুহূৰ্ত। সকলোৱে এই মুহূৰ্তত যদি এবাৰ আশীৰ্বাদ পায়, জীৱনৰ সাৰ্থক মুহূৰ্ত। তো আমি সকলোৱে ইয়ালৈ আহিছোঁ আশীৰ্বাদ বিচাৰি, আৰু বাবাক এই মুহূৰ্তমানৰ পিছতে ইয়াত ভ্ৰমণ কৰিব। ভিৰ গাঁৱলৈ যাব, ভিৰ গাঁৱৰ পৰা বাকৰি লৈ যাব, বাকৰিৰ পৰা পুনৰ ঘূৰি আহিব। এই যি পৰিক্ৰমা, এই পৰিক্ৰমাই বিশ্বনাথবাসীক সমৃদ্ধ কৰিছে, বিশ্বনাথ বৈভৱ পৰিচয় দাঙি ধৰিছে। তো আজিৰ অনুষ্ঠানত সকলো ৰাইজক বিনম্ৰতাৰ অনুৰোধ, সকলোৱে অংশগ্ৰহণ কৰক পুনৰ এবাৰ, আৰু বিশ্বনাথৰ ঐতিহ্য পৰম্পৰাক ভৱিষ্যতৰ প্ৰজন্মৰ বাবে আগবঢ়াই লৈ যাওক, তাকে মই কামনা কৰিছোঁ। ইয়াৰ মাজতে এটা
প্ৰশ্ন যে আপুনি নিৰ্বাচন ইতিমধ্যে শেষ হ'ল, তাৰপিছত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে পশ্চিমবংগৰ নিৰ্বাচনৰ দায়িত্ব পাইছে, তাত আপুনি কেম্পেইনিং কৰিবলৈ যাব। ইয়াতে ভগৱানৰ আশীষ লৈ আপুনি পশ্চিমবংগলৈ যাবলৈ সাজু হৈছে এই মুহূৰ্তত। নিশ্চিতভাৱে, কাৰণ আজি ভগৱানৰ আশীৰ্বাদ আমি সদায় বিশ্বনাথ ঘাট মন্দিৰলৈ আহি সদায় আশীৰ্বাদ লওঁ। আজিৰ এই মাংগলিক অনুষ্ঠানত পুনৰ এবাৰ অহাৰ আৰু গোঁসাই বিহুৰ দিনাখন ইয়াত আহি আশীৰ্বাদ লোৱা, ইয়াতকৈ ডাঙৰ সৌভাগ্য একো নহয়। দলৰ এটা দায়িত্ব পাইছোঁ, দলে দায়িত্ব দিছে পশ্চিমবংগ নিৰ্বাচনতো কিছু হ'লেও সহযোগ কৰিবৰ বাবে। তো পশ্চিমবংগ নিৰ্বাচনত সহযোগ কৰিবলৈ আজি আমি যাম আৰু আশা কৰিছোঁ পশ্চিমবংগতো খুব ভাল ফলাফল ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। নিশা গুৱাহাটী বিহু সন্মিলনীৰ মঞ্চত হঠাৎ উপস্থিত হ'ল গৰিমা গাৰ্গ। জুবিন গাৰ্গৰ ন্যায়ক লৈ কান্দি কান্দি গৰিমাই ক'লে বহু কথা। উপস্থিত দৰ্শকক উদ্দেশ্যে জুবিনে ন্যায় পাবই, আপোনালোকে জুবিনক ন্যায় দিছেই। বহুত কান্দিলোঁ মই, আজিৰ পৰা আৰু নাকান্দো, কান্দি কান্দি ভাগৰি নপৰোঁ। জুবিন এতিয়াও মঞ্চতেই আছে, আপোনালোকৰ আত্মাত জুবিন আছে, এই মন্তব্য আগবঢ়ালে গৰিমা। আৰু অধ্যক্ষ কৈলাশ কুমাৰ ডাঙৰীয়া আমি মঞ্চত আহিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। জুবিনে এইখন অসম এৰি কেতিয়াও নাযায় যেনেকৈ পাৰ্থ কৈছে, আৰু সেইকাৰণে মই আজি এইখন মঞ্চলৈ আহিছোঁ সাহস কৰি। আজি বহুদিন হ'ল মানুহৰ মাজলৈ যাব পৰা সাহস মোৰ নাছিল, কথা ক'ব পৰা সাহস মোৰ নাছিল, আৱেগিক হৈ ভাঙি পৰোঁ। কিন্তু আজি মই আপোনালোকৰ পৰা বহুত শক্তি পাইছোঁ। মই যেতিয়া পিছফালে বহিছোঁহি আহি মই অনুভৱ কৰিছোঁ জুবিন এইখিনিত আছে। জুবিন অকণমান অকণমান নহয়, আপোনালোকৰ সকলোৰে প্ৰাণত জুবিন আত্মা হৈ জীয়াই আছে, থাকিব। মই চেষ্টা কৰিম আজিৰ পৰা আৰু এই চকু লুকুৱাই নাথাকোঁ। মই আপোনালোকৰ মাজত শক্তিশালী উঠি আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিম। জুবিনে ভাল পোৱা সকলো কাম আমি কৰি যাম। জুবিনে এজনে 100জন হৈ কাম কৰিছে, কিন্তু আমি 100 ভাগৰ এভাগ হয়তো অকণমান অকণমান ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্ৰকৈ আমি কৰিব পাৰোঁ। নিশ্চয় আমি কৰিম সকলোৱে। আপোনালোক যদি আমি একেলগে আমি জুবিনক সকলোৱে ৰাখিব পাৰিম অসমখনত। ন্যায় আমাৰ মাজত জুবিনে ইতিমধ্যে মই ভাবোঁ আপোনালোকে ন্যায় দিছে জুবিনক, আৰু ন্যায় জুবিনে পাবই। সেয়া ন্যায় ঈশ্বৰে দিব, সেয়া ন্যায় ৰাইজে দিব, সেয়া ন্যায় জুবিনে পাবই। নুমলীগড় বকিয়ালত ভয়ংকৰ ঘটনা। এগৰাকী যুৱতীক অশ্লীল মন্তব্য প্ৰদান কৰাক লৈ দুই ফুটৰ মাজত প্ৰচণ্ড মাৰপিট। 4জনকৈ যুৱকে মদ্যপান কৰি যুৱতীগৰাকীৰ ঘৰত গৈ মাৰপিট কৰাৰ অভিযোগ। মঞ্জিল গড়, সুমিত গোৱালা, কাৰ্তিক ৰজত আৰু সুমিত গড়ৰ বিৰুদ্ধে মাৰপিটৰ অভিযোগ। 4 যুৱকৰ মাৰপিটত অচেতন হৈ পৰে যুৱতীগৰাকী। এই ঘটনাৰ পিছতে দুই ফুটৰ মাজত লাগে প্ৰচণ্ড মাৰপিট। এই ঘটনাত যুৱতীগৰাকীসহ আহত 3গৰাকীক ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে হাস্পতালত। ঘটনা সন্দৰ্ভত বগীজান আৰক্ষীয়ে আৰম্ভ কৰিছে তদন্ত। তেতিয়া আহি মানে গোটেই সোমাই গ'ল। আমাৰ মাহঁতে কেলে আহিছ বোলে, আমাৰ মানুহজনক অঁতৰাই দিলোঁ। সিহঁতি মানে ল'ৰা হ'লে বেছি কাজিয়া হয় না, আমি অঁতৰাই দিলোঁ। এতিয়া হেৰি কৈছে বোলে তহঁতি বোলে মামাক হেৰি কৰিছে বোলে, আৰু চুলিটো টানি আনিলে আমাক। ল'ৰা 4টা মানে কথা আমাৰ আহি মেলি মানে কথা পাতিব লাগে, কি হ'ল কি নাই। তেতিয়া আহি আমাক উল্টা চুলি টানি মাৰিছে, আমাৰ মাক আৰু মোক। তাৰপিছত মানুহজনক মাৰিলে, তাৰপিছত আমাৰ ভণ্টিক আনি মানে পেলাই মেলি মাৰিছে, ছোৱালীজনীক মাৰিছে। 4টা ল'ৰা আছিলে। ব্যৱস্থা আমি থানালৈ জনোৱা হৈছে, ইতিমধ্যে থানালৈ জনোৱা হৈছে, আৰু যিহেতুকে তেওঁলোক আঘাতপ্ৰাপ্ত, 2টা পক্ষই আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে। লোকসভা সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ বিধেয়ক উত্থাপন। লোকসভাত বিধেয়ক উত্থাপনৰ বাবে ভোট গ্ৰহণ। সংবিধান 131 সংখ্যক সংশোধন বিধেয়ক উত্থাপনক লৈ ভোট। বিধেয়ক উত্থাপনৰ সপক্ষে পৰিল 207টা ভোট। বিধেয়কখনৰ উত্থাপনৰ বিপক্ষে পৰিছে 126টা ভোট।
माननीय मंत्री जी अब विधेयक पूरा स्थापित करें। आइटम नंबर 7। मैं आपकी अनुमति से विधेयक को पूर्व स्थापित करता हूं। आइटम नंबर 8 माननीय गृह मंत्री जी। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि संघ राज्य क्षेत्र विधि संशोधन विधेयक 2026 पर विचार किया जाए। 1 मिनट, थोड़ा संशोधन करना पड़ेगा मुझे आइटम नंबर 7 को लेके। प्रश्न है कि विधेयक को पूर्व स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में अनुमति प्रदान की जाती है। माननीय मंत्री जी अब विधेयक पूर्व स्थापित करें। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि संघ राज्य क्षेत्र विधि संशोधन विधेयक 2026 पर विचार किया जाए। प्रस्ताव आइटम नंबर 9। प्रश्न है कि विधेयक को प्रस्तावित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में अनुमति प्रदान की जाती है। माननीय मंत्री जी अब विधेयक को प्रस्तावित करें। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से विधेयक को पूर्व स्थापित करता हूं। धन्यवाद। आइटम नंबर 10 श्री अर्जुन राम मेघवाल। आइटम नंबर 10 66। अध्यक्ष महोदय, with your kind permission, I move the following motion that this House do suspend the proviso to Rule 66 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha in its application to the motion for taking into consideration and passing of the Delimitation Bill 2026 and the Union Territories Laws Amendment Bill 2026 as much as these are dependent upon the Constitution's 131st Amendment Bill 2026. क्या वेणुगोपाल जी क्या argument given by the honorable minister is completely against the rules. The rule is very clear. A bill which is dependent wholly or partly upon another bill pending before the House may be introduced in the House in anticipation of the passing of the bill in which it is dependent. Here one is the constitution bill. Very clearly one is the constitution bill. And other two is not a constitution bill. Clubbing both together will not be a good practice, sir. Sir, we cannot allow it, sir. Therefore, there are consequences, sir. Just when the Constitution Amendment Bill is going to be defeated, then what is the point, sir? माननीय गृह मंत्री अरे हो गया ना भाई, बैठो बैठो, हो गया, आप बोल लिए। अरे बैठो, आप तो अपनी बात कीजिए माननीय गृह मंत्री। माननीय अध्यक्ष जी, मैं व्यवस्था दे रहा हूं इस पे, मैं व्यवस्था दे रहा हूं अभी। अरे भाई हो गया गृह मंत्री जी, मैं व्यवस्था दे रहा हूं इस पे भी। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य वेणुगोपाल जी ने एक प्रकार से दो मुद्दे उठाए। एक मुद्दा टेक्निकल है कि जो संविधान संशोधन होता है इसमें गण की आपूर्ति अलग होती है और जो कानून होता है उसमें गण की आपूर्ति अलग होती है। सदन के बहुमत के जो रूल्स है, जो नियम बने हैं वो अलग अलग हैं, इसलिए इस पर साथ में विचार नहीं हो सकता। और दूसरा कि जब डिबेट होती है तब संविधान संशोधन पर डिबेट अलग होना चाहिए और बिल पर अलग डिबेट होना चाहिए। माननीय अध्यक्ष जी, ये जो 3 बिल, एक संविधान संशोधन और 2 बिल सदन के सामने अभी प्रस्तुत किए हैं, उसमें से संविधान संशोधन करने के बाद महिला आरक्षण को लॉजिकल एंड ले जाने के लिए ये 2 कानून जरूरी है, इसलिए 2 कानून साथ में लाए गए। एक प्रकार से संविधान संशोधन
होने के बाद जो जरूरियात उत्पन्न होती है उसी में से ये 2 कानून लाने का सोचा गया है। जहां तक उनका सवाल है कि बिल पारित करने में मत का विभाजन अलग अलग होता है, तो अभी हम चर्चा एक साथ में करें, क्योंकि एक कुल मिलाकर एट लेंथ में देखें तो एक ही विषय पर चर्चा होना है। जब आप बिल पारित करोगे तो स्वाभाविक रूप से तीनों संविधान संशोधन में अलग डिवीजन होगा और बिलों की डिवीजन की जरूरत पड़ी तो भी वो अलग होगा। तो इसमें किसी भी प्रकार के औचित्य का भंग नहीं है और कई बार ऐसा हो चुका है, कई बार ऐसा हो चुका है। जैसे नारी शक्ति वंदन अधिनियम में भी ये तीनों बिल एक साथ ही आए थे और इसी सदन ने उनकी सहमति से पास किया, मगर आज सुबह वो विरोध करने का तय कर आए मीटिंग में, इसलिए हर चीज में विरोध ही किए जा रहे हैं। चर्चा का सवाल नहीं, मैंने उनको अलाउ थोड़ी किया है। नो, नहीं, आप उनकी वकालत मत करो। नो नो, शशि थरूर जी ने ज्ञान दे दिया वेणुगोपाल जी को, या तो वेणुगोपाल जी ज्ञान प्राप्त नहीं करते तो शशि थरूर जी को बोलने दिया इन्होंने, मैं क्या करूं? आपको बोलना है क्या? आप बोलो, ये राजा जी बोलो। Sir, there are 2 bills. One is constitutional bill. One is delimitation bill. It is a statutory bill, well within the domain and scope of the parliament. The constitutional bill has to go to the President of India, and this bill also, delimitation bill, has to go to the President assent. Sir, the delimitation bill, you have to see how the delimitation is going to happen. Consequentially, you have to amend the constitution. First of all, the first duty of the parliament is pass the delimitation bill, get the assent. Okay. Then consequently, constitution has to be amended. Cannot be kept together. That is a procedure. Go through the rules. मैं 66 पे दे रहा हूँ डायरेक्शन, 66 पे डायरेक्शन दे रहा हूँ। नो, 66 पे, चूंकि माननीय मंत्री महोदय ने इस नियम को शिथिल करने का प्रस्ताव रखा है, सभा द्वारा प्रस्ताव पारित करने के बाद सभा दोनों विधेयकों को एक साथ चर्चा कर सकती है। पूर्व में भी कई दृष्टांत हैं इसके, जो आप चाहेंगे तो सभी कार्यकाल के एक दृष्टांत को मैं सुना सकता हूं, लंबी सूची है। अभी फिलहाल में इस संविधान संशोधन 121 संशोधन और 2014 और नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन 2000 के अंदर भी, और उसके पहले संविधान का 58वां संशोधन 1987, ऐसे बहुत सारे जनप्रतिनिधि विधेयक 1987, सबके कार्यकाल में अलग अलग समय पर ये परंपरा रही है और सदन परंपराओं से भी चलता है, प्रक्रियाओं से भी चलता है और नियमों में छूट देने की शिथिलता देने का अधिकार सदन ने स्पीकर को दे रखा है। पॉइंट ऑफ ऑर्डर इसमें नहीं है। प्रश्न ये है कि माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य प्रस्ताव के विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। लॉबी खोल दी जाए। अब माननीय सदस्य सदन की मैं मत लेना चाहता हूं कि इस पे कितने घंटा चर्चा चाहते हैं आप। चलिए, जितने घंटे रात को अकेले बैठे रहोगे आप। हाँ, संसदीय कार्य मंत्री जी। अनुरोध है, क्योंकि सारा सदस्य इस महत्वपूर्ण चर्चा के लिए आए हैं, तो
आपने पहले ही कह दिया कि बोलने का पर्याप्त समय देंगे। हमारा सरकार की ओर से हम एक बात रखना चाहते हैं कि क्योंकि 2 दिन का चर्चा है, आज सुविधा अनुसार आज और कल मिला करके अभी फिलहाल हम 12 घंटे का हम चर्चा का टाइम तय करें और 12 घंटे के बाद समय एक्सटेंड करने का हम अथॉरिटी हम स्पीकर को दे दें तो भी ठीक है, क्योंकि कल 4 बजे मतदान करने का भी निर्णय है। तो स्पीकर साहब खबर छोड़ देते हैं आज कितना देर तक चर्चा करना है कि सारा मेंबर देर रात तक बैठेंगे तो हम लोग तो सरकार तो सुनने के लिए जवाब देने के लिए भी तैयार है। माननीय बैठिए। माननीय सदस्यगण, इन तीनों विधेयकों पर कल 4 बजे 17 तारीख को 4 बजे मतदान होगा। उसके पहले आज आपको लंबी चर्चा करनी पड़ेगी और 15-18 घंटे जितना घंटा चाहेंगे आपको चर्चा का पर्याप्त अवसर देंगे। कमी नहीं रहेगी समय के पास, सबको समय देंगे। अभी तक माननीय सदस्य 3 घंटे में भी आप एक पार्टी के सदस्य हो और आपका समय 1 मिनट बैठता है। हर व्यक्ति ने हर विधेयक पर 6-6, 7-7 घंटे बोले हैं। ऐसा नहीं बोल सकते आप। कौन से विधेयक पर? हर विधेयक पे मैंने सबको पर्याप्त समय दिया है सदन के अंदर, हर विधेयक पर। 370 जब पारित हुआ था विधेयक का, जब गृह मंत्री ने आग्रह किया कि जितना समय देना दें, इस विधेयक पर भी सरकार और आपका मत भी यही है कि जितना देर चर्चा करना चाहें करें। ये महत्वपूर्ण विधेयक है, विधेयक महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है, इसलिए व्यापक डिटेल चर्चा होनी चाहिए और इस पर 4 बजे मतदान होगा ताकि सबको जानकारी रहे। श्री अर्जुन राम मेघवाल जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। आज आपके माध्यम से इस महान सदन के समक्ष बोलते हुए मुझे गर्व, हर्ष और रोमांच की अनुभूति हो रही है। आज का दिन संसदीय इतिहास के पृष्ठों पर स्वर्णिम अक्षरों से लिखा जाएगा। इसी गरिमा में सदन ने सितंबर 2023 में नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 को पास कर हमारी मातृशक्ति के लिए लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में 33% सीटों के आरक्षण की व्यवस्था की थी और आज उस ऐतिहासिक निर्णय को लागू करने का समय आ गया है। अध्यक्ष जी, अध्यक्ष महोदय, इतिहास में कुछ अवसर ऐसे आते हैं जो इतना प्रभाव छोड़ जाते हैं कि सदियों तक उनको याद किया जाता है और आज का दिन ऐसा ही पावन दिवस है। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष जी, हमारे संविधान निर्माताओं ने संविधान के आर्टिकल 368/2 माननीय सदस्य प्लीज, माननीय सदस्य माननीय सदस्य, मैं आग्रह करता हूं कि अगर आप इस तरीके से उठेंगे तो मैं नामजद तरीके से बोलना पड़ेगा मुझे। प्लीज बैठिए, प्लीज माननीय सदस्य बैठिए। माननीय मंत्री जी महत्वपूर्ण संविधान संशोधन बोल रहे हैं, चलिए बैठिए। विशाल दा पाटिल, क्या तरीका, कई बार समझा दिया आपको। अगर आप व्यवस्था का पालन नहीं करेंगे तो आपको बोलने का मौका नहीं दिया जाएगा। माननीय अर्जुन मेघवाल जी। अध्यक्ष महोदय, जैसे आपने पहले कहा, मैंने शुरू कर दिया था, लेकिन जो आइटम आपने 10 नंबर रूल 66 में रिलैक्सेशन दिया, इसलिए मैं आपसे ये भी अनुरोध करता हूं कि जो अपना आइटम 11, 12 और 13 इन सब पे विचार करने के लिए एक साथ आप विचार करने की अनुमति हमें प्रदान करें। अध्यक्ष महोदय, मैं ये कह रहा था कि हमारे संविधान निर्माताओं ने संविधान के आर्टिकल 368/2 के माध्यम से संविधान को ये शक्ति प्रदान की है जिसके माध्यम से हम आवश्यकता अनुसार
संशोधन कर लोक हित के निर्णय लागू कर सकते हैं। ये संसद को ही शक्ति दी है संविधान ने आर्टिकल 368 के तहत। इस पवित्र उद्देश्य से नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लागू करने के लिए ये तीनों बिल आज इस महान सदन के समक्ष प्रस्तुत हुए हैं। महिलाओं को उचित प्रतिनिधित्व मिले, इसके लिए संविधान सभा में बहस हुई। श्रीमती हंसा मेहता, श्रीमती रेणुका रे, श्रीमती पूर्णिमा बनर्जी, श्रीमती अम्मू स्वामीनाथन जैसी महिला सदस्यों ने महिला प्रतिनिधित्व के मुद्दे पर संविधान सभा के समक्ष भी उठाया था। इसका मतलब मुद्दा 1949 से भी चल रहा है। अध्यक्ष महोदय, हमारे संविधान की प्रस्तावना में एक जस्टिस शब्द का उल्लेख हुआ है। जस्टिस की अपन बात को जोर देकर के भी संविधान सभा के निर्माताओं ने कहा है। जस्टिस भी 3 प्रकार का उन्होंने कहा है: सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। सर्वप्रथम यदि हम सामाजिक न्याय की बात करें तो ऐसा नहीं है कि इस दिशा में कदम नहीं उठाए गए। जो भी सरकारें रही उस पर चिंतन हुआ, लेकिन आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार आने के बाद मातृशक्ति के सामाजिक न्याय के लिए अनेक योजनाएं संचालित की गई। वे उनकी स्पीड और स्केल को बढ़ाया गया। मोदी जी जब महिलाओं के लिए शौचालय बनाते हैं तो महिलाओं के सम्मान में वृद्धि होती है, उससे इज्जत घर का नाम दिया जाता है। पीएम आवास के माध्यम से जब 69% मालिका हक मातृशक्ति को दिया जाता है तो वो सुरक्षित महसूस करती है। उज्ज्वला योजना के माध्यम से जब गैस चूल्हा मिलता है तो स्वास्थ्य में सुधार होता है। धुएं भरी रसोई से लेकर गरिमापूर्ण जीवन तक यही हमारा सामाजिक न्याय, जिसकी कल्पना कभी बाबा साहब बी आर अम्बेडकर साहब ने की थी कि हमें नागरिकों को, समस्त नागरिकों को सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय देना होगा। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के माध्यम से जब गर्भवती महिला को पोषण मिलता है तो आने वाला भविष्य भी संवरता है। मैटरनिटी अवकाश को 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह किया जाता है तो पारिवारिक दायित्वों की पूर्ति का समय मिलता है। शस्त्र सेनाओं में महिलाओं को जब स्थायी कमीशन प्रदान करने से राष्ट्र सेवा में डिफेंस फोर्सेज का अभिन्न हिस्सा बनती है तो महिलाएं सशक्त होने का एहसास महसूस करती है। इसी प्रकार हम आर्थिक न्याय की बात करें, मैंने अभी तक सामाजिक न्याय की बात करी, अब मैं आर्थिक न्याय की बात करता हूं। अगर आर्थिक न्याय की बात करें तो योजनाएं पहले भी बनी, लेकिन जब मोदी जी आते हैं 2014 में तो इन योजनाओं के क्रियान्वयन में और परिणाम में विजिबल चेंज नजर आता है। महिलाओं के लिए जनधन खाते, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, लखपति दीदी, मुद्रा योजना में तो 60% से ज्यादा महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त और समर्थ बन रही है। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप और स्टार्टअप के संचालन में स्वयं निर्णय प्रक्रिया में भागीदार बनकर आर्थिक योजना में सहभागिता दे रही है। अध्यक्ष महोदय, ये सब क्यों संभव हो पाया? ये ऐसे ही नहीं हुआ। ये उस दृढ़ इच्छा शक्ति और पवित्र भावना का परिणाम है जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी मातृशक्ति के लिए रखते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि हमारे पास नियत भी है, नीति भी हो और मोदी जी जैसे सशक्त नेता भी हैं। अध्यक्ष महोदय, यदि हम राजनीतिक न्याय की बात करें, अभी मैंने सामाजिक न्याय की बात करी, आर्थिक न्याय की बात करी और राजनीतिक न्याय की बात, ये संविधान का जो हमारा प्रीएम्बल है उसी में उल्लेखित है। अध्यक्ष जी, पहला शब्द ही न्याय है। तो हम राजनीतिक न्याय की बात करें तो सर्वप्रथम हमारे संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने महिलाओं को राइट टू वोट का अधिकार दिया। ये राजनीतिक न्याय है सर, जिसे उन्होंने यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज कहा। महिलाओं को राजनीतिक रूप से सक्रिय भागीदारी की और बड़ा कदम बढ़ाया। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज को लेकर ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस जो 1927 में, ये 100 साल का संघर्ष है सर, 1927 में पुणे में आयोजित हुई थी। 1931 तक सभी को वैक्स मताधिकार की मांग की गई थी, जिसे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी द्वारा भारत के संविधान में साकार रूप दिया गया। राइट टू वोट महिलाओं को। बाबा साहब का कहना था, आई कोट, आई मेजर द प्रोग्रेस ऑफ ए कम्युनिटी बाय द डिग्री ऑफ ए प्रोग्रेस विच वुमेन हैव अचीव्ड। अर्थात मैं किसी समाज की प्रगति को महिलाओं की प्रगति से मापता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, यहां एक विषय और उल्लेखनीय है कि जहां भारत में बाबा साहब ने आजादी के तुरंत बाद महिलाओं को समान मताधिकार उपलब्ध कराया, वहां दुनिया में
जो विकसित कही जाने वाली दुनिया में लंबे समय तक महिलाओं को संघर्ष करना पड़ा। मैं इंग्लैंड का उदाहरण देता हूं, यूके का उदाहरण देता हूं अध्यक्ष जी, यूएस का। यूएस 1776 में आजाद हुआ, लेकिन महिलाओं को मताधिकार मिलने में कितने साल लगे? 144 वर्ष। और यूनाइटेड किंगडम, इसमें तो 1918 में महिलाओं को मताधिकार दिया, लेकिन लिमिटेड कर दिया कि जो महिलाएं 30 साल से उम्र के अधिक हो या जिनका पति प्रॉपर्टी से संबंधित क्वालिफिकेशन रखता हो उसको दिया। और उसके 10 साल बाद 1928 में द इक्वल फ्रेंचाइज एक्ट के माध्यम से 21 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं को समान मताधिकार मिला। राइट टू रिप्रेजेंटेशन बाबा साहब का मूल वाक्य हुआ करता था। आज हमारे यशस्वी, तपस्वी, कर्मयोगी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी इसी दिशा में सोच रहे हैं। इसी कारण मातृ शक्ति को नीति निर्माण में भागीदार बनाने के लिए महत्वपूर्ण बिल पेश हुए हैं। ये बिल महिलाओं के समान भागीदारी के पॉलिटिकल जस्टिस को पूरा करेगा। सर, आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय की बात प्रस्तावना में तो खूब कही गई है, लेकिन लोगों ने उसको लागू करने का प्रयास नहीं किया। अगर लागू करने का प्रस्ताव के पक्ष में नहीं है, वो ना के मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। আজি 2 বহাগ শিৱসাগৰ তলাতল ঘৰৰ বাকৰিত অসমীয়া যুৱ মঞ্চ আৰু মহিলা মঞ্চৰ জয়সাগৰ আঞ্চলিক সমিতিৰ উদ্যোগত মুকলি বিহু উদযাপন। ঢোল পেপাৰ মাতত মুখৰিত হৈ পৰিছে শিৱসাগৰৰ ঐতিহাসিক তলাতল ঘৰৰ বাকৰি। সম্প্ৰীতি হুঁচৰি দল সহ কেইবাটাও হুঁচৰি দলৰ অংশগ্ৰহণ, লগতে কেইবাটাও জেং বিহু দলেও অংশ লৈছে মুকলি তিপতে বাবি অসমীয়া যুৱ মঞ্চ আৰু অসমীয়া মহিলা মঞ্চৰ উদ্যোগত ইয়াত মুকলি বিহু উদযাপন কৰা হৈছে। আৰু এই মুকলি বিহুত পোনে পোনে মই লৈ যাব বিচাৰিছো এযোৰা হুঁচৰিৰ মাজলৈ। নলিবিৰিনা কহুৱা বতাহতে উৰিছে কহুৱাৰে তোলা কলি দিলিয়া কুপাতে গুচি থোৱা গগনা বিহুৰে তলিতে বজাবি তই কেতিয়া বহু নাচনি তাতে ভুলাবি মৰমেৰে আঙুলি উকাহৰে তিপতে বাবি ৰাজ্যৰ চৌদিশে এতিয়া ৰঙালীৰ আনন্দ উৎসাহ। ব্যতিক্ৰমী নহয় গহপুৰ। ঢোল তাল পেপাৰ মাতৰ ৰজন জনাইছে চৌদিশ। ডেকা গাভৰুকে ধৰি সকলো বয়সৰ লোকেৰে গঠিত হুঁচৰি দলসমূহে গৃহস্থৰ চোতাল শুৱনি কৰিছে। গহপুৰৰ উত্তৰ ঘাঁহি গাঁৱত ঘৰে ঘৰে গৈ হুঁচৰি মাৰি আশীৰ্বাদ লৈছে গৃহস্থক। এনেদৰে গোসাই বিহুৰ দিনাও উত্তৰ ঘাঁহি গাঁৱত প্ৰায় 150 লোকৰ গঠিত হুঁচৰি দলে গৃহস্থৰ চোতালত জুৰিছে।
আমাৰ গৃহ তীৰ্থ ৰঙালী বিহুৰ পিছতে মধ্য অসমত অনুষ্ঠিত হোৱা গোভা বহাগ বিহু তিৱা লোকাচাৰ অনুসৰি গোভা দেওৰজা আৰু ৰাজ পৰিষদৰ সিদ্ধান্ত মৰ্মে এইবাৰো 18 এপ্ৰিলৰ পৰা 26 এপ্ৰিললৈ অনুষ্ঠিত হ'ব গোভা বহাগ বিহু পৰম্পৰা অনুসৰি এই বিহুতে তিৱাসকলে কৰে দেও বিচনী পূজাত ইষ্ট দেৱতা জাদুৱা গোসাঁই আৰু ৰজাক বা দিয়াৰ পিছতহে বিচনী হাতত লয় তিৱাসকলে এনে নকৰিলে উপায় অমংগলে দেখা দিয়ে বুলি এক জনবিশ্বাস চলি আহিছে এইবাৰো 20 এপ্ৰিলত তিৱাসকলৰ সৰ্বোচ্চ দেৱতা ভা মহাদেউক পূজা অৰ্চনা কৰা দিনটোতে সকলো চৰকাৰী আৰু বেচৰকাৰী অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানসমূহ বন্ধ ৰাখি বিহু উদযাপন কৰাত সহায় কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে গোভা দেওৰজা ৰাজ দৰবাৰে গোভা বিহুৰ জৰিয়তে তিৱা জনগোষ্ঠী আৰু বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ মাজত তিৱা লোকাচাৰসমূহ জীয়াই ৰখাৰ চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে যে বাপতি সাহোন বহাগ বিহুৰ পিছতে আমাৰ গোভা বহাগ বিহু আৰম্ভ হয় আৰু গোভা বহাগ বিহু 1400 শতিকাৰ পৰা আৰম্ভ হৈছিল 1400 শতিকাত গোভা ৰজাই ৰাজ্য বিস্তাৰ কৰি আহি কুমাৰখুঞ্জি বুলি কয় বৰ্তমান কুমাৰকুছিত ৰাজধানী পাতিছিল আৰু তেতিয়াৰ পৰাই গোভা ৰজাই মানে কি কয় গোভা বহাগ বিহু পাতি আহিছে আৰু সেই দিন ধৰি সেই তাহানিৰ সেই দিন ধৰি গোভা ৰজাই মানে তিৱাসকলৰ যে লোক পৰম্পৰা লোকাচাৰ সেইবিলাকক বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ জৰিয়তে জীয়াই ৰাখিবলৈ প্ৰয়াস কৰিছে পশ্চিমবংগত বিজেপিৰ ষ্টাৰ কেম্পেইনাৰ হিচাপে প্ৰচাৰ নামিছে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আজি পশ্চিমবংগত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই চলাইছে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ অভিযান পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ হৈ বৰ্তমান লৈ গৈছে राधी इसको भेज देता हूं चलो तुम चले जाओ अपना जगह में लेकिन मैं क्या करूं असम का और मैं भगा देता हूं और ममता जी बांग्लादेशी को पश्चिम बंगाल में दुल्हन जैसे बुला के लेके आते हैं दुल्हन जैसे बुला के ले आते हैं फायदा क्या होता है कुछ भी फायदा नहीं होता है धीरे धीरे असम और पश्चिम बंगाल में हिंदू कम होते चले जाएगा अभी असम में हिंदू का संख्या पहले 80% थे अभी 60% हो गया पश्चिम बंगाल में 70% हुए थे इस बार सेंसस में पश्चिम बंगाल में भी हिंदू का संख्या 7% तक कम हिंदू संख्या दिने दिने घाट से और बांग्लादेशी मुसलमानों संख्या दिने दिने बढ़ से अभी आप लोगों ने देखा है बांग्लादेश में हिंदू का ऊपर कितना अत्याचार हुआ आप लोगों ने देखा था कि नहीं देखा था टीवी में देखा था कि नहीं देखा था क्या आप लोग चाहते हैं पश्चिम बंगाल में भी ऐसा हालत हो आप लोग चाहते हैं असम में भी ऐसा हालत हो लेकिन अगर टीएमसी और ममता बनर्जी रहे ना 20 साल का अंदर हमारा हालत बांग्लादेश से भी ज्यादा खराब होने वाला है ज्यादा खराब होने वाला है ये ममता जी पश्चिम बंगाल और पूरा देश को बांग्लादेशी मुसलमान को बिक्री करके ही छोड़ेगा तब तक वो शांत नहीं होगा भाइयों और बहनों हमें जिंदा रहना है कि नहीं है हमें जिंदा रहना है कि नहीं है अगर हमें जिंदा रहना है तो हमें टीएमसी को पॉलिटिकली मारना पड़ेगा अगर टीएमसी पॉलिटिकली नहीं मरेगा तब तक हम लोग जिंदा नहीं रह पाएगा भाइयों और बहनों ये लोग क्या कर रहा है तुष्टिकरण का राजनीति बांग्लादेशी यादेर संगे ओनार भालोबासा और आमादेर संगे ओनादेर शत्रु आमी ओनादेर दुश्मन और बांग्लादेशेर मेयेगुलो ओनार बंधु
এটাই ওরা নিয়ম। हम लोग सब लोग मिलके एक बात सोचना पड़ेगा, पश्चिम बंगाल या असम में या तो हम जिंदा रहेगा या तो बांग्लादेशी मुसलमान लोग जिंदा रहेगा। दोनों एक साथ जिंदा हो ही नहीं सकता है, दोनों एक साथ जिंदा नहीं रह सकता है। कहां से लोग आ जाता है? आप लोग देखिए, बॉर्डर खुला है, इधर से गाय जाता है, उधर से आदमी आते हैं, यही है ना। इधर से वो अभिषेक बनर्जी गाय का तस्करी भेजते, यहां से गाय जाते हैं और उधर से नया नया आदमी आते हैं। अगर इतना बांग्लादेशी आएगा, हम लोग कैसे जिंदा रहेगा? ये पूरा बांग्लादेशी मुसलमान लोग असम और बंगाल को खा जाएगा। 20 साल का बाद यहां में कोई हिंदू जीते नहीं सकेगा। कोई हिंदू का यहां जीवन धारण करना इतना इजी नहीं होगा। भाई और बहनों, बांग्लादेश में जो हुआ है इसको हमें हमारा याद में रखना चाहिए। जब वोट देने का समय होते हैं ना, आप लोग एक ही बात सोचिए कि हमारा जीवन तो निकाल गया, लेकिन हमारा बेटा बेटी का जीवन नहीं निकालेगा। हम लोग को यहां से भी भागना पड़ेगा, हम लोग को यहां से भी भागना पड़ेगा। भाई और बहनों, असम में 10 साल का बीजेपी का सरकार बना। मैंने बांग्लादेशियों को पॉलिटिकली टांग पूरा तोड़ दिया। इस बार मैं बोला हूं असम चुनाव में कि एक बार हमारा और सरकार बन जाए, बांग्लादेशी मुसलमान का हम पूरा उनका जीवन ही तोड़ दूंगा। पॉलिटिकली हम ये बोल के आया हूं। हमने उनको 1.5 लाख एकड़ जमीन से एविक्शन किया। हम बोला नहीं, हमारा जमीन तुम लोग नहीं ले सकता है। हमने उनको जमीन से भगाया। पहले 1-2 बार हल्ला किया था, फिर मैंने थोड़ा ट्रीटमेंट कर दिया, अभी हल्ला करने का भी बंद कर दिया। जब ट्रीटमेंट मिल गया ठीक हो गया। लेकिन यहां में भी बांग्लादेशी मुसलमान को ट्रीटमेंट देने वाला एक सरकार चाहिए कि नहीं चाहिए? हमें एक सरकार हमें चाहिए कि नहीं चाहिए? हमें इस बार बीजेपी को जिताना है भाई और बहनों। ये जो बात बोलते हैं ना कि बीजेपी आने से मांस मांस नहीं चलेगा, ये पूरा फालतू की बात है। आप लोग धुबरी में जाइए, ग्वालपारा में जाइए, जितना हिस्सा इतना मांस मांस खा के आइए। बीजेपी का सरकार वह बना हुआ है, कोई मना नहीं है। क्या माना है? गो मांस मत खाइए। क्या माना है? वहां जाके गो मांस मत खाओ। तो ममता जी इसीलिए नाराज होते हैं, बीजेपी का सरकार आने में गो मांस वाला व्यापार बंद हो जाएगा। उनको नहीं चाहिए, उनको चाहिए कि लोगों को बांग्लादेश तक हम गो मांस का तस्करी चलते रहे और हमारा तिजोरी में पैसा आते रहे। भाई और बहनों, आप लोगों ने देखा है 10 साल में असम का कितना परिवर्तन हुए। असम का सरकारी कर्मचारी को 7 पे कमीशन मिलते हैं, 50% डीए मिलते हैं। लेकिन हमारा पश्चिम बंगाल इतना बड़ा स्टेट होने का बाद भी हमारा पश्चिम बंगाल का सरकारी कर्मचारी को खाली 22% डीए मिलते हैं। क्यों? पश्चिम बंगाल ज्यादा बड़ा राज्य है कि असम बड़ा राज्य है? अगर असम में सरकारी कर्मचारी को 50% डीए मिलते हैं तो पश्चिम बंगाल का सरकारी कर्मचारी को भी 50% डीए मिलना चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए कि नहीं चाहिए? लेकिन टीएमसी देते नहीं है। टीएमसी सरकारी कर्मचारी को भी कुछ नहीं देते हैं और लोगों के लिए भी कुछ काम नहीं करते हैं। इसीलिए इस बार भाई और बहनों, मौका है, हमें बीजेपी का सरकार लाना है और हमें सरकारी कर्मचारी को भी हमें न्याय देना है। अभी हमारा असम में चुनाव हुए, चुनाव का पहले हम लोगों ने नया स्कीम लाया
कि हमारा माँ बहन को चावल तो नरेंद्र मोदी जी फ्री देते ही देते हैं। अभी हमने असम में शुरू किया कि दाल भी मिल रहा है, चीनी भी मिल रहा है, नमक भी मिल रहा है, और साथ साथ में अभी मैं डिक्लेयर करके आया हूं, चुनाव का बाद असम का माता बहनों को मस्टर्ड ऑयल भी फ्री में मिलने का काम शुरू हो जाएगा। लेकिन हमारा असम कितना बड़ा स्टेट है? छोटे प्रदेश है। बंगाल कितना बड़ा है? बहुत बड़ा है। लेकिन बंगाल का सरकारी कर्मचारी को भी डीए नहीं मिलते हैं, और असम में माताओं और बहनों को जो सुविधा मिलते हैं हमारा पश्चिम बंगाल में नहीं मिलते हैं। असम में सरकारी कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में जो बेटी पढ़ता है, हर बेटी को हम लोग हर महीना 2500 रुपया देता हूं खाली पढ़ने के लिए, और बेटा को हम लोग 2000 रुपया देता हूं। कितना देता हूं? जब कॉलेज में दाखिल होता है बेटा को मिलते हैं 2000 रुपया, बेटी को मिलते हैं 2500 रुपया हर महीना। पश्चिम बंगाल में मिलते हैं क्या? किसी को मिलते हैं क्या? लेकिन यहाँ कितना मिलना चाहिए था? असम में 2500 होते हैं तो पश्चिम बंगाल में ये 5000 होना चाहिए था। होना चाहिए था कि नहीं चाहिए था? असम में मेरा माताओं बहनों में जितना माइक्रो फाइनेंस से लोन लिए थे मैं सब रिटर्न कर दिया सरकार का ओर से। जितना लोन थे, किसी का 40,000, किसी का 1 लाख, किसी का 1.5 लाख, जितना माइक्रो फाइनेंस बंधन बैंक से जितना लोन थे हमने सब लोन सरकार का ओर से लौटा दिया। माताओं को लोन से हमने मुक्त कर दिया। क्या ममता दी किया है ये काम? यहाँ में किया है। यहाँ में अभी बीजेपी क्या बोल रहा है कि आप लोगों का जितना माइक्रो फाइनेंस का लोन है 1 लाख रुपया तक नरेंद्र मोदी जी लौटाएगा, आप लोगों को लौटाना नहीं। नरेंद्र मोदी जी आप लोगों का ओर से लोन रिटर्न कर देगा। आप लोगों को शांति से रहना है, आप लोग को लोन को रिटर्न नहीं करना है। भाइयों बहनों, ये सब काम हम असम में कर चुका हूं। असम में ये सब काम हो चुका है। अभी ममता दी हमें बहुत दिन तक लक्ष्मी भंडार 500,000 रुपया दिए। नमस्कार। अक्कर बक्कर बम्बे बो ঘৰত কোনটো টিএমটি লগাইছে? माइथन स्टील আপোনাৰ ওপৰত ট্ৰাষ্ট কৰিব পাৰি। ओके ষ্ট্ৰং মানে